Hi everyone, welcome back to our channel Super Easy. So this is the part that we are continuing after doing Regulating Act of 1773. So make sure that you first see that video so that you can link and then continue with our video now. So Amending Act of 1781. In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. पहले हमने बताया कि there was a regulating act which was passed in 1773, so there were some flaws. Naturally, first law था, company नई थी, and the British government and the British administration was also new with respect to India, तो defects of flaws तो आना normal सी बात थी. That is why to rectify those defects, उन defects को ठीक करना, because of that the British Parliament back in London उसने पास किया एक amending act. Amending का मतलब few changes, ठीक है. Amending Act of 1781, also known as Act of Settlement, ठीक. The features of this act were as follows. It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. Okay. Now, पहले हमने पढ़ा there was Governor General of Bengal. उनके पास एक अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक. हमने भी पढ़ा था कि एक सुप्रीम कोर्ट भी बन गया था. It exempted the Governor General and the council from the jurisdiction of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का एक jurisdiction होता है कि what सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा होता है कि वो किन किन या किस किस तरीके के केसेस वो ले सकता है, राइट. तो गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एग्जेम्पशन मिला था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर थे इन द एक्ट्स डन बाय देम इन ऑफिशियल कैपेसिटी. सिंपल सा मतलब ये था कि गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी एक्ट करती है, कुछ भी एक्ट पास करती है या कानून पास करती है या कुछ एक्शन लेती है, तो वो सही है या गलत है, this will be outside the jurisdiction of Supreme Court, right? Similarly, the servants of the company were exempted from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. Similarly, जो servants थे company के, वो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करते हैं, सही है गलत, इट विल बी आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो तीन चीजें समझ में है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल कैपेसिटी और ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि ये लोग अगर नहीं फॉलो करते हैं, सो इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. किसका गवर्नर जनरल, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सर्वेंट्स. It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. अब Supreme Court का jurisdiction allowed नहीं था. जो भी revenue matters थे, revenue आ रहा था, as we discussed in the above regulating act, revenue आ रहा था, तो revenue से जुड़े हुए तमाम मुद्दे होंगे, तो उन सब का jurisdiction Supreme Court के अंदर नहीं, Supreme Court का jurisdiction उन सब matters पे नहीं था. It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer personal law of defendants. ठीक, इतना समझते हैं पहले. सुप्रीम, अभी हमने ऊपर तक ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट का जो jurisdiction था वो कहाँ नहीं था. गवर्नर जनरल पे नहीं था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे नहीं था, सर्वेंट्स पे नहीं था, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स में नहीं था, ठीक है. यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था. तो कहाँ है, कहाँ था फिर? उसका जुरिसडिक्शन था ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा. कैलकाटा में जितने भी लोग रह रहे थे उन सब पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन था, ठीक. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स. मान लीजिए कोई इंसान आता है, तो इट वॉज टोल्ड बाय दिस लॉ
कि सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिनिस्टर करेगी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल लॉ। मान लीजिए कोई हिंदू आया एंड कोई मुस्लिम आया, you will treat Hindu and you will treat Muslim differently as per their own personal laws. Hindus के कुछ अलग नियम होंगे, Muslims के कुछ अलग होंगे, so you have to treat them accordingly. That is the personal law of defendants, right? Hindus were to be tried according to their Hindu law and Muslims were to be tried according to their Mohammedan law. It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court. अब Supreme Court है, there were provincial courts also. तो provincial courts से, as you may know that High Court से एक अपील कर सकते हैं Supreme Court and from subordinate court to upper courts. वैसे ही जो अपील थी, नॉर्मल सी बात है, it had to go to Supreme Court. भाई provincial court से कोई अपील जाएगी तो वो Supreme Court को ही तो जाएगी, पर ऐसा नहीं था. प्रोविंशियल कोर्ट्स से जो अपील थी, इट हैड टू गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको अपील जानी थी एज पर दिस अमेंडिंग एक्ट. इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स. वही बात कह दी फिफ्थ पॉइंट ने कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील जब गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएगी, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास भी तो पावर्स होने चाहिए सो दैट इट कैन फ्रेम रेगुलेशंस. इसको तो बोला प्रोविंशियल काउंसिल को कि आप गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाओ प्रोविंशियल कोर्ट्स को, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास भी तो पावर होनी चाहिए सो दैट इट कुड फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स. बात समझ में आई? तो अमेंडिंग एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, लेट्स रिकॉल वन बाय वन. पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी. सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन नहीं थे इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी? गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनकी, सर्वेंट्स एंड द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स एंड बेसिकली द रेवेन्यू. कौन था सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में? ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, और उनको एडमिनिस्टर करना था एज पर देयर ओन पर्सनल लॉ. ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई तो प्रोविंशियल कोर्ट्स की बात तो आएगी ही आएगी. अपील्स रेगुलरली, मतलब इन अ वेरी जनरल फॉर्मेट, प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जाती हैं सुप्रीम कोर्ट को, बट यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जाएंगी गवर्नर जनरल की इन काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को. तो इस काउंसिल के पास भी राइट्स थे टू फ्रेम रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स. चलिए आगे देखते हैं. Pitt's India Act of 1784. The next important act was Pitt's India Act of 1784. The features of this act were as follows. It distinguished between the commercial and the political functions of the company. Initially इसने कंपनी ट्रेडिंग करने आई थी. रेगुलेटिंग एक्ट ने उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज किया, बट ये कंपनी सब साथ ही में कर रही थी. इट वॉज अ टोटल खिचड़ी, इट वॉज कुकिंग यहाँ पे. तो पिट्स इंडिया एक्ट आई, इसने बोला कंपनी के टू सेपरेट द कमर्शियल फंक्शंस, जो आप ट्रेडिंग करते हैं उनको अलग करिए, एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस उनको अलग करिए. डोंट मेक अ मेस. It allowed the court of directors to manage the commercial functions, but created a new body called as the board of directors to manage political functions. It established a system of double government. इसने कंपनी है, इसने कहा अपने कमर्शियल फंक्शंस को अलग करिए, पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग करिए. इनिशियली वी रेड इन रेगुलेटिंग एक्ट कि हमारे पास एक सीओडी थी जो उस टाइम पे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट भेज रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. अब ये सीओडी आ गई कमर्शियल फंक्शंस को देखने के लिए. याद करने का तरीका, सी फॉर कमर्शियल, सी फॉर सीओडी. और इन्होंने जो कि डिस्टिंग्विश किया हमारे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को, तो इसके लिए भी तो एक गवर्निंग बॉडी देनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD, CD एंड बी के बाद C. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आया, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट में कहा था इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द कंपनी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंस इट वॉज गेटिंग डिस्टिंग्विश्ड इनटू कमर्शियल एंड पॉलिटिकल, सो इट हैड टू मेक अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट भेजेगा टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्लियर? अब चूंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है, देयरफॉर
COD plus BOC, DG, that is डबल गवर्नमेंट बन गई. क्लियर? चलिए. It empowered the Board of Control to supervise and direct all the operations of civil and military government or revenues of British possessions in India. अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी आई, भाई ये तो पूरा ट्रेडिंग देख रही है. अब इसको एम्पावर किया गया कि यू हैव टू सुपरवाइज, देखो क्या क्या चल रहा है, और डायरेक्ट मतलब यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू सुपरवाइज सॉरी, एंड यू हैव टू गाइड, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू मॉनिटर जितने भी सिविल ऑपरेशंस थे, मिलिट्री ऑपरेशंस थे गवर्नमेंट के, रेवेन्यू इनिशियली जो कि ये काम कर रही थी COD, नाउ इट वाज सोलली गिवन टू BOC टू परफॉर्म. ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया है इस एक्ट ने? पहले तो डिस्टिंग्विश किया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया फॉर पॉलिटिकल फंक्शंस, और कंट्रोल ऑफ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो एज इट इज था उसको बनाया फॉर कमर्शियल पर्पसेस, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डबल गवर्नमेंट. फिर उसने एम्पावर किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो पहले फंक्शन COD के पास थे अब आप वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू. ठीक है. Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India for the first time called as the British possessions in India. And second, the British government was given supreme control over companies' affairs and administration in India. Very, very important. Very, very important. क्यों? क्योंकि via Pitt's Act of 1784 जितने भी ब्रिटिश पोजीशंस इंडिया में हो रहे थे, ठीक है, इसको फॉर्मली एक नाम दिया गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया. अभी तक नाम नहीं दिया गया था. और सेकंड चीज ये थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चूंकि वाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैविंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. कमर्शियल अलग कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली वाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको संभालने का मौका मिला, इसको सुपरवाइज करने का मौका मिला. So I hope you had a good time learning about these two acts. आगे की acts के बारे में we'll catch up in our next video. I hope you enjoyed. Thank you.